नमस्कार, प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क के रात्रि बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज की तारीख है 23 जून। तो चलिए नजर डालते हैं आज की 11 बड़ी खबरों पर जो बनी रही सुर्खियों का केंद्र। तो शुरू करते हैं आज का प्रमुख समाचार बुलेटिन सिर्फ प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क पर। पहले आज के ब्रेकिंग हेडलाइंस जान लेते हैं। हरांग नदी में पानी बढ़ा, फेरी सेवा बंद, संपर्क टूटा। जीविका सखी पर पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप। बिहारा आउटपोस्ट के आईसी सुरजीत डेका के संदिग्ध मौत। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हरांग नदी में पानी बढ़ा, फेरी सेवा बंद, संपर्क टूटा। पर्वतीय बारिश के कारण हरांग नदी में जलस्तर बढ़ने से सोमवार सुबह से फेरी सेवा बंद कर दी गई। पुल पहले ही टूट चुका था, जिससे अब दोनों किनारे पूरी तरह संपर्क से कट गए हैं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर तैरकर नदी पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इंजन चालित नाव शुरू करने की मांग की है। देवार लगी शीतल माঝি যে তারা সেনাবাহিনী যা কষ্ট করছে আজকে তারা লাগি এটা সম্ভব না, দেখা যায় তারা বন্ধ করে রাখছে। এর লাগি আমরা স্কুলের বাচ্চারা টাইম মতো দেখতে পারেন না। আমরা অনুরোধ করি আর যাতে একটা ইঞ্জিন চালিত নৌকা দেওয়ার লাগি কেন আমরা দাবি। বিক্রমপুর লোকনাথ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আমরা স্কুলে যেতাম পারি না। স্কুলে এক্সাম চলে, আমরা বহু দূর জায়গা আটিয়া বাইরে ঘুরিয়ে আইয়া যেতে লাগে। 5 কিলোমিটার যাওয়া আটিয়া আইয়া যেতে লাগে। ভাড়াও নেই নটওয়ালা ব্রিজ তো কাটকে বানাইছেন, আজকে লইয়া গেছি কিটা বাসের ব্রিজ। আজকে একটা ব্রিজ বানাই দিয়েছিল বাস দিয়া, এটা লইয়া গেছে কি আজকে নদী স্পিডে লইয়া গেছে। जीविका सखी पर पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप। कछार जिले के छोटा दूध पातिल ग्राम पंचायत के शास्त्री नगर और बगान इलाके के ग्रामीणों ने जीविका सखी पर प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जियो टैगिंग में धांधली कर सैकड़ों गरीब परिवारों को योजना से वंचित कर दिया गया है। कई जरूरतमंद परिवार अब भी जर्जर और असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। আমরা তো অরুণোদয়ও পাই না, একটা গরম নাই, একটা ল্যাট্রিনও নাই, একটা কুয়াও নাই, আমরা কিচ্ছু সার পাই না, কিচ্ছু নাই। সরকার থেকে এখন বলতে কিচ্ছু পাইছি না। এখন আমার রেকর্ড আছে। আপনি এখানে কত বছর ধরে বাসিন্দা? আমরা বহুত দিন থেকে আমরা 67 থেকে আমি বাসিন্দা 1967। কিন্তু অন্যরা ভাই আমরা কিচ্ছু পাই না। আমরা নামে আইয়া তো শুনতে দিয়ে ইয়ে করিয়া গেছে, যেটা করছেন কইরা গেছে, ওইটা লিস্টে নাম নাই। কিন্তু যারা আছে তারা 3-4টা করিয়া আছে, কিন্তু আমরা কিচ্ছু পাই না। একটা ল্যাট্রিন পর্যন্ত নাই, ওই বাঙ্গার ল্যাট্রিন। এখন আমরা কিটা করব? তারা অন্য দোকানে কাজ করি আমরা ছেলেরা খাব, আমরা একটা সরকারি সুবিধা পাই না। আচ্ছা, ভাই কোনো কিছু পাইছে সরকার থেকে বলতো পাইছেন না? আচ্ছা, আমার রেকর্ড আমার দেখাও কইতে পারবো আমি। তো আপনার আধার কার্ড বা সবকিছু ডকুমেন্ট আছে? সব আধার কার্ড, ভোটার আই কার্ড, রেশন কার্ড সব আছে। সব আছে, ভোটার আছে। তো সরকারি বলতে খালি শুধু রেশন কার্ডটাই আছে? রেশন কার্ড ওইটাই। বিপিএল কার্ড না এপিএল? আমরা কিছু পাইছি না, আমরা এই ফারাক থেকেও গড় পাইছেন না। আমার ঘরটা আপনি দেখে যান। আপনার নাম কি? সাবিত্রী রায়। আচ্ছা, আমি একটা নির্ভয়, আমার কেউ নাই। ছেলে মেয়ে কেউ নাই। মধ্যে বইয়া বইয়া তাই এক জায়গায় বইয়া সবরে ডাক দিয়া একটা ঘর দেখায় জিও টেস্টটা করছে। আচ্ছা, আর কেউ বাড়িতে গেছে না, শিয়াল লইয়া এক জায়গায় বসে কইছে সবরে ডাকিয়া দিল। একটা ঘরেই বারবার ফটো মারিয়া হে লইয়া গেছে। কাগজ জমা দিতে গেলে তারে কাগজ যখন জমা দেওয়া যায় মেয়ে লোকরা তখন তারা ডাকিয়া উঠে। बिहारा आउटपोस्ट के आईसी सुरजीत डेका की संदिग्ध मौत। बिहारा आउटपोस्ट के प्रभारी सुरजीत डेका की ड्यूटी के दौरान रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई। सहकर्मियों ने कई बार आवाज देने पर जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़कर उन्हें अचेत पाया। शुरुआती जानकारी के अनुसार गुटखा खाने से श्वास नली अवरुद्ध होने के कारण मौत हुई। हालांकि कुछ सूत्र आत्महत्या की आशंका भी जता रहे हैं। असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।
বিহারা থানার আইসিজি সুরজিৎ তাই দেখা গেছে সকালবেলা ঘুম থেকে আর উঠরা না। এটা লিয়ে থানার স্টাফেরা গেছে, আমরা তো জিপি অফিসে বোয়াত আসতাম, তো তারাও আমরা ডাকছি, একটু আও চলো স্যার তো দিকে ডাকতে ডাকতে উঠলো না। তো জানলা উপরে দিয়ে উঠি ভেন্টিলেটার দিয়ে লক্ষ্য করা হলো তাই বিছনার শোয়া, এরপরে জানলা বাগিয়া দেখা গেল তাই একটা হিকির মতো লই যা। তখন বোঝা গেছে তাই সেটা একটা অসুস্থ কোথাও ফিল করা, তাদের ডাকাডাকি হয়েছে, কোনো উত্তর দিছুন না। দরজা ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া তাদের অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেছে। তখন সময় আনুমানিক একটা ফোনে একটা হইব। তখন সকলে আমরা ধরা পুলিশ স্টাফও আসছিল, আমরা দৌড়াদৌড়ি করে লগে লগে সোনাপুর যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেটা আছে ইন লইয়া গেছি, গিয়া ইন ইঞ্জেকশন দিয়েছে। দেওয়ার পরে যে ডাক্তারে তখন অক্সিজেন লাগানোর কথা বলছি, অক্সিজেনটা লাগাও, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এমন ব্যবস্থা আর এমন করার যে তারা 2026 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएगी, मून स्वर्णकार। हाइलाकांदी असम भाजपा की नवनियुक्त राज्य सभा नेत्री मून स्वर्णकार ने पदभार संभालने के बाद हाइलाकांदी में कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। उन्होंने केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य में सीएम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व की सराहना की और विकास कार्यों के लिए जनता का आभार जताया। साथ ही भाजपा हाईकमान को जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का नेतृत्व और माननीय सभापति दिलीप सैकिया जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ये आस्था और विश्वास हम पर रखा है कि बराक वैली से हमारे जैसे कार्यकर्ता को इस पद पर पहुंचाने के बाद हम पार्टी का हमारा जो नीति है, नियम है, पार्टी का जो आदर्श है, जो अनुशासन है, इन सब को मिलाकर हम एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हर समय किसी भी दुख में, किसी भी परेशानी में जनता के पास, जनता के साथ खड़े होंगे और पार्टी का जो नीति नियम है उसको मानकर पार्टी का हर काम करके पार्टी को और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा सोचना है। और हम पार्टी के नेतृत्व के पास कृतज्ञ हैं कि पार्टी ने हमें इस जगह के लिए चुना। अच्छा, मैम 2026 में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो अभी सत्ता पक्ष है भाजपा को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है या फिर से सत्ता में आएंगे, इसके बारे में आप कितना प्रतिशत माने आशावादी है? देखिए, पार्टी आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हो या फिर राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का हो, आप लोगों को सबको मालूम है कि ये नेतृत्व एक शक्तिशाली नेतृत्व है। ये नेतृत्व जनता को हर समय दुख और परेशानी के समय जनता को समझने और संभालने वाली नेतृत्व है। हर मुसीबत के समय आगे आकर ये पार्टी के नेतृत्व जनता के हक में काम करने वाला नेतृत्व है। जनता की सहानुभूति, जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार हमारे पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है। इस वजह से हमारी पार्टी कहीं हारी नहीं है, हमेशा आगे बढ़ती गई है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। अभी आगामी दिनों में 2026 में असम में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बरनी ब्रिज जीपी अध्यक्ष बने पिंकी सतनामी, सभी सदस्य कांग्रेस में शामिल। हाइलाकांदी बरनी ब्रिज ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पिंकी सतनामी को अध्यक्ष चुना और कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने गांव के समग्र विकास के लिए मिलकर ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया।
সহমতিতে আমি এই পদটা পেয়েছি আর সুন্দরভাবে আমার ব্যবসা গ্রুপের মধ্যে সুন্দরভাবে আমি কাজ চালিয়ে যাব, কোনো আমার প্রতিহিংসা নেই। গ্রুপ মেম্বার আমি আমি বনিবিক জিপের 4 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার। আমার নাম নিপু মোহন দাস আর আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের কর্মী এবং আগেও ছিলাম। আর বর্তমানে আমরা আর কি পিঙ্কি স্বপ্নামী 9 নম্বর ওয়ার্ডের পিঙ্কি স্বপ্নামীরে আর কি আমরা ওই প্রেসিডেন্ট সর্বসম্মতিতে আমরা প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করছি এবং আমরা সবের প্রতি এই বনিবিক জিপির সব জনতার প্রতি এই শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং ওনাদের সব কাজকর্ম আমরা যত কিছু পারি আর কি সাহায্য করি আমরা দিব। এবং আর আগামী সপ্তাহের ভিতরে আমরা এই কংগ্রেস ভবনে গিয়ে আমরা সবে গিয়ে कॉन्ग्रेस ज्वाइन करूं, भारतीय जातीय कांग्रेस। नगर निगम चुनाव उम्मीदवारों की डिग्री की जांच की मांग। आगामी सिलचर नगर निगम चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की स्नातक डिग्री की सत्यता जांच की मांग को लेकर असम युवा परिषद ने कछार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिषद के केंद्रीय सचिव नेकबुब हुसैन लश्कर के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री, मंत्री, चुनाव आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को संबोधित करते हुए चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की गई। আজ অসম গণপরিষদ দলের অসম যুব পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা কাছাড়ের জেলা শাসক মৃদুল যাদব মহাশয়কে শিলচর পৌর নিগম নির্বাচন নিয়ে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেছি। স্মারকপত্র দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো যে কিছু কিছু প্রার্থীরা ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে নির্বাচন খেলার চেষ্টা করছেন। টাকার বিনিময়ে ওরা সার্টিফিকেট নিয়ে চাইছেন যে নির্বাচন খেলতে। আমরা ডিসি মহোদয়কে এই স্মারকপত্র দিয়ে ওনাকে অবগত করাছি যে এইসব ভুয়া সার্টিফিকেটদের ভালো করে তদন্ত করা উচিত যাহাতে ওরা মানে নির্বাচন না খেলতে পারে আর যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচন খেলতে পারে। তার জন্য সুষ্ঠু সম্পূর্ণভাবে এই প্রক্রিয়াটা করার জন্য আমরা ডিসি মহোদয়কে অনুরোধ করেছি। सिलचर रामकृष्ण मिशन में योग दिवस का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिलचर रामकृष्ण मिशन प्रांगण में 62 असम महिला बटालियन की 221 कैडेट्स से कुल 1534 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत योग मंत्र के साथ हुई और योग गुरु भास्वती पाल ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। एक पृथ्वी एक स्वस्थ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन के सचिव महाराज गंदीश नंद जी और योग गुरु को सम्मानित किया गया। आयोजन की जानकारी एनसीसी अधिकारी अर्पिता दास ने दी। उधारबंद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उधारबंद में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। भाजपा मंडल की ओर से श्री श्री कांसा कांति माता मंदिर में योग शिविर आयोजित हुआ, जिसमें मंडल अध्यक्ष उमा शंकर भट्टाचार्य, पूर्व अध्यक्ष नवारुण चक्रवर्ती व आरएसएस के मुकुंद चक्रवर्ती ने भाग लिया। विधायक मेहर कांति सोम की पहल पर कुंभीर ग्राम सद्भावना भवन में भी योग कार्यक्रम हुआ। प्रशिक्षक अभिजीत पाल ने योगाभ्यास कराया। उधारबंद स्वास्थ्य केंद्र व कई स्कूल कॉलेजों में भी योग दिवस मनाया गया। बराक उपत्यका वंग साहित्य सम्मेलन की 43वीं आम सभा संपन्न। उधारबंद बराक उपत्यका वंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन के 43वीं केंद्रीय वार्षिक आम सभा सिलचर के बड़खोला स्थित शेडो सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुई। ध्वजारोहण के साथ शुरू इस सभा में 3 जिलों के प्रतिनिधि और अनेक विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए। सभा में महासचिव गौतम दत्ता ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरे सत्र में 6 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर साहित्य, संस्कृति और समाज सेवा से जुड़े कई गणमान्य व्यक्तियों ने विचार साझा किए। এবারে সম্মাননা দেওয়া হবে ক্রীড়া পারদর্শিনী রবি সিংহকে। बराक वैली ओपन शतरंज प्रतियोगिता का समापन। डॉक्टर रवि कन्नन मुख्य अतिथि।
सिलचर में आयोजित बराक वैली ओपन शतरंज प्रतियोगिता का समापन रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कछार कैंसर अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन शामिल हुए। आयोजन द लिटिल ट्री हाउस चेस एकेडमी के संस्थापक अनूप राय द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में अभियोजित नाथ ने सभी 7 में से 7 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। सुदीप्तपाल रणवीर देव। अंडर 11 बॉयज वी हैव भार्गव देवनाथ, मनोदीप तेजस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. Under 13 boys we have Adarsh, Akhilesh, Sadvik, first, second and third. Under 15 we have Nikhil, Pratik and Abhijit, first, second and third. We have the youngest player of the tournament, Ashwath Bhargav Rai. We have youngest from our Little Treehouse Chess Academy as Siddharth Sil. We have under 17 boys Nehal Roy, Timan Devnath and Angad Chanda. Best female Priyanjali Nath. Under 7 girls we have Troy Roy, Aradhya Devnath and Ayushi Kurmi. Under 7 boys we have Daksh Sinha, Harshit Chakrabarti and Devankit Das. And we also had the best academy award as top 3 performer from the academy, Shuhail Ahmed Ansari, Hitesh Adhikari and Rudranil Bishwas. With all these we also had the best school awards. This time again we had the best school in terms of performance. It was Silchar Collegiate School. Silchar Collegiate School with 42 points have taken the best school award. The second best in terms of performance second best in terms of performance we had Saint Capitanio School with 25 points. The best school with maximum number of participation we had Don Bosco School with 21 participants. We are thankful to each one of you. We are thankful to the school authority. We are thankful to our sponsor. We are thankful to the parents, guardians and the school authority for helping us, giving immense support to make this tournament success, and we look forward to the same support next year. We will come up with the 3rd edition of Bharat Valley Chess Championship by the Little Treehouse Chess Academy. With heartfelt thanks to all, I am thankful to each one of the school authority who have sent their students to participate here, and we are thankful to each one of them. Thank you. We had total 158 participants in this tournament. ये सिलचर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। बच्चों को चेस के लिए ट्रेन करना, मस्तिष्क को बढ़ावा देना, फिज़िकल एक्टिविटी को एनकरेज करना बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है फ्यूचर सिटीजन्स के लिए चेस एकेडमी को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत दिवस हाइलाकांदी में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। हाइलाकांदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर आज हाइलाकांदी जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। 1953 में आज ही के दिन कश्मीर मुद्दे को लेकर आंदोलन के दौरान उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके राष्ट्रनिष्ठ विचारों को याद किया। तो ये थी आज की टॉप 11 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारतीय डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।